हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन. माई सेल्फ लोहित जिंदल and I welcome you all in our next session of IOChem 10 marker series, guys. So in this series we are solving some questions which are, we can say, on par to the level of 10 marker which are expected to be coming in this year. Okay, so guys, एक काम करते हैं without wasting any much time, है ना, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा. IOChem 10 marker, but guys again I'll suggest you one thing. Please try this question by yourself first. पहले खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर ही इसका सोल्यूशन देखना कंप्लीटली, बिकॉज अदरवाइज आपका लर्निंग बेस्ट नहीं हो पाएगा. यू विल नॉट बी गेटिंग द मैक्सिमम और द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ दिस थिंग. अगर आप वीडियो देख रहे हो, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा देन आपको. ओके, ऑलराइट, लेट मी शो यू द क्वेश्चन गाइस. इट्स बेस्ड ऑन अलजेब्रा. ओके, सो गाइस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? लेट एफ ऑफ एक्स इज अ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए. Where ABC are integers, one of the important things जो पहले ही underline कर लिया करो, ABC are integers that is given to you with C is not being equal to 0. Okay, C 0 नहीं है. Suppose that the following conditions hold. दो conditions hold करती हैं. One is f of 1 is 0. For first equation के लिए f of 1 0 है. Second thing, the roots of g of x are the squares of the roots of f of x. ठीक है ना? तो f of x के जो roots हैं वो g of x के जो g of x के roots हैं वो f of x के roots के squares हैं. ठीक है. So finally we have to find the value of a power 2013, b power 2013 and c power 2013. So let us see what does it mean. ठीक है, solve करते हैं इसको. So guys देखो, f of 1 is 0, it means 1 is the root of f of x, है ना. x equal to 1 is root of 1 of the root of f of x, है ना. Since f of 1 is equal to 0, and what is f of 1? वैसे लिख के भी रख लेते हैं, which is making it 0. 1 plus a plus b plus c. So this is one relation that we know, 1 plus a plus b plus c should be 0. ठीक है. So guys इसका क्या मतलब हुआ? f of x के तीन रूट्स मान लेते हैं. Let's say the first root is 1, एक रूट तो 1 है ही, and let's say the other roots are you can say alpha and beta. We can say that, है ना, अल्फा और बीटा उसके दो रूट्स हैं. So this will imply that g of x के roots क्या हैं? उसके squares हैं. देखो, right? What are the roots of g of x? Those are squares. For 1 का square तो 1 ही होगा. 1 root of g of x would be 1, है ना. अल्फा का square होगा एक और दूसरा रूट होगा बीटा का square. So this is what their roots will look like. ठीक है. So let us try to understand what is the sum of roots, product of roots, वो सब लिखने की कोशिश करते हैं. For this f of x, what do we know guys? First of all, sum of roots 1 plus alpha plus beta is minus a. From the equation, है ना, Veda's theorem यूज करते हैं. Okay, sum of roots taken 2 at a time will be alpha beta plus beta, right? How much is that? That is minus plus b, right? And finally the product 1 into alpha into beta is minus c, right? That is the sum, various conditions for the first equation f of x. Same thing for g of x क्या आ जाएगा? लिख के ट्राई करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट लिख लेते हैं नहीं तो अभी के लिए. What is the sum of roots? 1 plus alpha square plus beta square, that is equal to minus b. And product लिख लेते हैं अभी के लिए, जरूरत पड़ेगी तो taken 2 at a time भी लिख लेंगे. ठीक है, although will not need that. So product of roots is alpha square beta square minus plus minus, so that is minus a. Okay, let us name these equations, थोड़ा easy हो जाएगा समझने में. ठीक है, इक्वेशन नंबर यहाँ से शुरू करते हैं. This is equation number 1, equation number 2, 3, 4, इसको 5 लिख लेते हैं, and this is 6. We have these 6 equations. Let us use them. मैं देखते हैं. Okay, सबसे पहले तो गाइस इक्वेशन 4 and 6 को ही कंपेयर करते हैं, है ना. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 6, है ना, उनको अगर देखते हैं, अल्फा बीटा का स्क्वायर किया, दैट इज सी स्क्वायर, है ना. अल्फा बीटा का स्क्वायर दैट इज सी माइनस सी का स्क्वायर is equal to alpha square beta square की वैल्यू कितनी है? माइनस ए. So this will give me that a is equal to minus of c square. माइनस साइन उधर ले गए. So this is another relation I am getting, a equal to minus c square. ठीक है, एक रिलेशन आ गया. Now what, let us do one thing, squaring both sides for equation 3. For equation 3, squaring both sides, right? What do I get? b square, or rather, oh sorry, for equation number 2, I wanted to say for equation number 2. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं.
नॉट फॉर द थर्ड वन, विल नॉट यील्ड एनीथिंग गुड. सो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं. सो माइनस ए का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर. ठीक है, तो क्या मिलेगा गाइस, ए स्क्वायर का क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट. 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, right. What will it yield? 1 plus alpha square plus beta square plus 2 times, ideally वैसे सीधा सोच सकते हो, sum of roots taken 2 at a time, right. So 2 times alpha beta plus beta. So let us substitute the values guys. देखो ये यहाँ पे किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5 से, है ना. 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन नंबर 3 और 5 का यूज हो जाएगा यहाँ पे. सो आई विल गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज माइनस बी प्लस 2 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज बी. सो माइनस बी प्लस 2b इज प्लस बी. तो गाइज यहाँ से मुझे क्या मिल गया, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू c पावर 4 फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट. उसका भी यूज कर दिया. तो मुझे a और b दोनों की वैल्यू c की फॉर्म में पता लग गई है, right. This thing is clear. Now the further step is quite easy guys. Using equation number 1, putting back in equation 1, है ना, putting back in equation number 1, क्या मिलेगा, 1 प्लस a की वैल्यू कितनी है, माइनस सी स्क्वायर है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, c पावर 4 है, एंड c की वैल्यू तो c है ही, तो 0 है. ये वैल्यू 0 होनी चाहिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, है ना, इक्वेशन नंबर 1. So guys, this will give us c power 4 minus c square plus c plus 1 equal to 0. क्या इसका हमें कोई रूट दिख रहा है? We are able to see that c को -1 डालने पे the expression is coming out to be 0, right? c को -1 डालेंगे तो 1 -1 कैंसिल हो रहा है, -1 plus 1 भी कैंसिल हो रहा है. You can either although you can factorize it also. c square कॉमन ले लेते हैं, c square -1 है ना, प्लस c plus 1. मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ. This is equal to 0. So c square minus 1 आपके पास क्या बनेगा, c square into c minus 1 into c plus 1 plus c plus 1 equal to 0. फैक्टराइज हो जाएगा. So c plus 1 you'll be able to take common. अंदर क्या आ जाएगा, c square into c minus 1 that is c cube minus c square plus 1. That is what you are left with. तो guys देखो c equal to -1 तो एक solution आ ही रहा है ना. This will give us c equal to -1 as a solution, right. बट व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन, क्या इसका सोल्यूशन नहीं आ सकता? वेरी इंटरेस्टिंगली हम कह सकते हैं कि नहीं आएगा. क्यों? c इंटीजर है, देखो c इज एन इंटीजर. इफ आई राइट इट लाइक दिस, c स्क्वायर कॉमन c -1 और -1 को उधर ले जाता हूँ, राइट. सो गाइस अगर दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, इट्स c स्क्वायर इंटू c -1, प्रोडक्ट इज -1 और ये इंटीजर्स होने चाहिए, तो बेसिकली 1 और -1 होने पड़ेंगे ना दोनों, और c स्क्वायर -1 हो नहीं सकता, c को -1 होना पड़ेगा, isn't it? तो c 0 भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, right. So there is no integer solution for this. If you look at it carefully, you can write no integer solution, right. There is no integer solution for this. क्योंकि आप देख सकते हो c स्क्वायर की, देखो अब प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, c की वैल्यू 1 या -1 होनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से c स्क्वायर तो है ना. तो c की वैल्यू -1 अगर डालते हो तो भी वो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, क्योंकि c -1 विल बिकम -2, ठीक है. -2 इंटू 1 हो जाएगा. फिर अगर आप c को +1 डालते हो तो 0 हो जाएगा फिर एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे. सो देयर इज नो इंटीजर सोल्यूशन टू दिस. सो ओनली वायबल सोल्यूशन इज c इक्वल टू -1 विच विल लीड अस टू गिव b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, है ना. b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b c पावर 4. सो दैट मीन्स b इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट. b की वैल्यू 1 हो गई, एंड दैट विल फर्दर लीड अस, a की वैल्यू भी आ जाएगी c से ही, रादर c से ही आ जाएगी a की वैल्यू, ये तो आ गई, और c से a की वैल्यू और क्या आ जाएगी, a की वैल्यू है -c स्क्वायर. सो c स्क्वायर इज 1 बट माइनस ऑफ c स्क्वायर, दैट मीन्स a की वैल्यू भी क्या हो गई, -1. सो गाइज a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1. सो इफ यू पुट इट इन दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू -1 है तो उसकी पावर ऑड हो रही है सबकी, है ना. सो दैट विल बी -1 प्लस b की पावर b 1 है, उसकी पावर ऑड है तो +1, c की वैल्यू अगेन -1. सो -1 + 1 -1, द आंसर इज -1.
ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा फाइनली दैट विल बी -1, ठीक है। ऑल्दो आई वांटेड टू पिक अप एन इंटीजर क्वेश्चन, तो इसमें -1 आ रहा है, बट ठीक है, क्वेश्चन पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना, व्हाट इज इट, नेगेटिव साइन भी डाल के रख सकते हैं, सो इस सोनली पावर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आई वुड से दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। सो गाइस दिस इज एक्चुअली अ प्रीवियस ईयर आरएमओ क्वेश्चन, आरएमओ का क्वेश्चन है, मैंने फिर से पिक किया, बट आई ट्राइड टू पिक अप सम अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि बड़े सिंपली वे में आ गया, बट एक्चुअली आपको ट्राई करना चाहिएगा कि वो बनेगा कैसे, है ना। क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि वो बहुत इजीली दिख रहा है ये तो, बट अगर आप खुद ट्राई करोगे तो थोड़ा आपको ढंग से सोचना पड़ेगा कि किसको कैसे सब्स्टिट्यूट करें सो दैट इट गिव्स आउट अ सिंपलर वे, है ना। तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, कई जगह आप कुछ और सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो बट कुछ और बन जाएगा, फिर इट विल माइट नॉट बिकम दैट मच इजियर मेथड, राइट। सो गाइज आई होप सबको ये मेथड समझ में आया, मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड लाइक दिस क्वेश्चन गाइज, समझ में आया, कुछ लर्न किया आपने, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that you get the regular updates, right? So guys, all the best then, keep practicing, and all the best for the future questions, right? Bye bye guys, take care, bye bye.